गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है डेटा माइनिंग टूल्स होता है जिसके थ्रू हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं या क्लासिफाई करते हैं या कह सकते हैं कि उनको क्लास लेवल देते हैं कि किस क्लास को वो डेटा बिलोंग करता है। जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया होना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जब तक हम नहीं रखेंगे तभी हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये क्राइटेरिया अगर फॉलो कर रहा है तो ये इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, और अगर इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो नहीं करता तो इस दूसरे लेवल में बिलोंग करता है। अब सिंपल ये है कि क्राइटेरिया जो भी हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, कई सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने सारे क्राइटेरिया होंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा को हम उसके क्लास लेवल में भेज देंगे या उस पर्टिकुलर डेटा को पहचानेंगे कि हाँ वो कहाँ पे किस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है और उस क्लास को भेज देंगे। Basically, classification is a data analysis, is for data analysis, and it is a process of finding model that describes and distinguishes data classes and concept. And it's a two-step process: learning step, applying algorithm, and then classification. For example, suppose that I'm taking a small example here for the classification. It's a simple classification where one criteria has been used, that is age. Suppose that a person is applying for the driving license. So a person is applying for the driving license, and the model has to decide whether he is eligible for the license or not eligible for the license. Simple criteria is age. Suppose that there can be many criteria, but suppose that I am taking only one criteria, age. So if age is less than or equal to 18, greater than or equal to 18, he is eligible for the driving license. And if the age is less than 18, he is not eligible for the license. Simple. If suppose that this model has been created in the software and you have trained this particular model, and when you are entering a new applicant form into the computer, into the software to check whether he is eligible for the driving license or not, the software will check only the age field, and for given model अगर एज 18 से कम है तो सीधा एलिजिबल नहीं है, अगर 18 से ज़्यादा है तो वो एलिजिबल है। इसके बाद भी और क्राइटेरिया हो सकते हैं कि हाँ वो डिसेबल्ड तो नहीं है, आई साइट उसकी कमज़ोर तो नहीं है, तो दैट कैन बी फॉलोड बाई अदर क्राइटेरिया ऑल्सो. Another example of classification is age. Suppose that a simple model which is describing or which is telling us that whether the person is applying for the loan is eligible for the loan or not eligible for the loan. Here we are taking three criteria. If age is less than or equal to 30, if age is between 31 and 40, and if age is greater than 40. So I am creating a model here in this particular diagram. We are creating a model. If less than or 30, if the person is student, then he is eligible for the loan. If age is less than 30 and person is not a student, then he is not eligible for the loan. Okay. In the same manner, every person between the age of 31 and 40 applying for the loan is eligible for the loan. Eligible for the loan. If the person is applying age from 31 to 40, he is eligible for the loan that I have created, maybe followed by other criteria. If age is greater than 40, suppose that in this example if age is greater than 40, then I am checking the credit rating. Credit rating, fair enough, good, excellent. If credit rating is excellent, he is not eligible for the loan. If credit rating is fair, then he is eligible for the loan. Here the question in your mind that why, if the credit rate is excellent and he is not eligible for the loan. So this is a normal rule for loaning process. If a person has a very good credit rating, it means he does not require any loan. He or she does not require any loan. क्योंकि अगर हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा है तो हमें लोन की ज़रूरत नहीं है. इट मीन्स ही इज़ नॉट टेकिंग दिस लोन फॉर द पर्पज. So this is a classification. This is the example of classification. You can say that. Here you are taking age as a one criteria, then the age credit rating is a different criteria, student is another criteria. There, the first criteria is age, second criteria is student, yes or no. First criteria is age,
Second criteria is credit rating, and it can be followed by other criteria also or other level also. So this is a classification. It's a two-step process. First is learning step, ट्रेनिंग फेज जिसको कहते हैं. इसमें क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल बनाते हैं. जैसे ये बना हुआ है, ऑलरेडी देख रहे हैं आप, एक तरह का मॉडल बना हुआ है. ये भी एक तरह का मॉडल बना हुआ है जिसको हम ट्रेनिंग फेज करते हैं, जिससे ट्रेन करते हैं हम मॉडल को. फिर होता है क्या कि डिफरेंट एल्गोरिथम यूज टू बिल्ड अ क्लासीफायर बाय मेकिंग द मॉडल लर्न यूजिंग द ट्रेनिंग सेट अवेलेबल. ठीक है, मीन्स डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ करके हम क्या करते हैं कि क्लासीफायर मॉडल बनाते हैं और उसको लर्न करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है. और देन सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं. क्लासीफाई करने के लिए हम बहुत सारे जो है टेक्निक यूज़ कर सकते हैं क्लासिफिकेशन में, जिसमें हम कह सकते हैं डिसीजन ट्री है, बायसियन क्लासीफायर्स है, न्यूरल नेटवर्क है, के नियरेस्ट नेबर है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, लीनियर रिग्रेशन है, और भी कई सारे मेथड हैं जिसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो दिस इज़ बेसिकली एन इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन. वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड फर्दर आफ्टर completing the process for the classification and the understanding how classification can be done, we'll follow we will take some example of decision tree, Bayesian classifier and neural network. Okay. सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको हर एक पर्टिकुलर एंटिटी या जो भी एंट्री हो रही है क्लासिफिकेशन में क्या करना है, उसको एक लेबल देना है. ठीक है, कि वो इस लेवल में है, वह इस लेवल में है, या इस लेवल में है, इस लेवल में है, इस लेवल में है. ठीक है, इस लेवल में देना है. तो इस लेबलिंग कैसे उसको हम एक पर्टिकुलर क्लास असाइन करेंगे, इसके लिए और सारे प्रोसेस हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस जिसको हम कहते हैं डेटा जनरलाइजेशन. हम लोग थोड़ा बहुत डेटा जनरलाइजेशन पढ़ चुके हैं. डेटा जनरलाइजेशन में हमने बताया था कि डेटा जनरलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस दैट abstracts a large set of tasks relevant data in a database from a low conceptual level to high one. मतलब क्या करते हैं इसमें कि हम लो लेवल कॉन्सेप्चुअल लेवल को हम क्या करते हैं, हाई लेवल में लेके जाते हैं. लो लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल में, मैं अपने घर का एग्जांपल दिया था एड्रेस का. ठीक है, उसी तरह से जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट कैन बी लेबल एज अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट. तो ये क्या हो गया, एक लेवल हो गया ना, तीन तरह का. तो स्टूडेंट of graduate can be engineering student, can be arts student, can be commerce student, can be any other subject. But the graduate is a higher level concept. Means I am talking about engineering student is lower concept, low level concept. And when you are only describing the whole engineering student, medical student, law student, art student, science student into one level, that is graduate, under or graduate student, या undergraduate student or postgraduate student. So you are applying, अब क्या करते हैं, लो लेवल कॉन्सेप्ट को हायर लेवल कॉन्सेप्ट पे ले जाते हैं. उसी को हम कहते हैं डेटा जनरलाइजेशन. और डेटा जनरलाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डेटा माइनिंग बेसिकली जो है कितने तरह का काम करता है. तो डेटा माइनिंग के जो भी टेक्निक्स और टूल्स हैं उनको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं. एक को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, एक को कहते हैं प्रिडिक्टिव. डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव का मतलब जैसे क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना. तो जो डिस्क्रिप्टिव माइनिंग होती है वो डिस्क्राइब्स द डेटा सेट इन अ कंसाइज एंड समेटिव मैनर एंड प्रेजेंट इंटरएक्टिवली present interesting general property of data. मीन्स हमको क्या करना है, इसको डिस्क्राइब करना है, डेटा को डिस्क्राइब करना है. जैसे हम कहें कि जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया अभी आपको डेटा को कि वी हैव सपोज दैट कि लॉट्स ऑफ स्टूडेंट इन आवर डेटाबेस, दे कैन बी डिस्क्राइब एज और समराइज एज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. तो क्या हुआ, एक तरह का लेवल प्रोवाइड करना है, इसको जनरल फॉर्म को करना है, यानी लो लेवल कॉन्सेप्ट से हम हाई लेवल कॉन्सेप्ट पे जाते हैं. इस तरह के जब हम काम करते हैं उसी को हम कहते हैं डेटा को डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना. दूसरा होता है प्रिडिक्टिव मॉडल, प्रिडिक्टिव माइनिंग जिसको कहते हैं. प्रिडिक्टिव माइनिंग का मतलब, प्रिडिक्टिव माइनिंग क्या है, इट एनालाइज डेटा टू कंस्ट्रक्ट वन और सेट ऑफ मॉडल्स and attempts to predict the behavior of new data. मीन्स प्रिडिक्ट करना है.
कि हम एक ऐसा मॉडल बना लेते हैं जिससे ये प्रिडिक्ट करना शुरू करता है, जिसको पैटर्न एनालिसिस भी कहते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन भी कहते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा you are just recognizing the pattern, and when you are recognizing the pattern or you are understanding the pattern, you can guess or you can predict or you can forecast the new data। ठीक है, तो ये दो तरह के टास्क करते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव माइनिंग हो गई और प्रिडिक्टिव माइनिंग हो गई। अब डिस्क्रिप्टिव माइनिंग का सबसे पहला माइनिंग टेक्निक है, सबसे आसान है, उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन। कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है? कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन, द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन डेटा माइनिंग इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट डिसीजन। कॉन्सेप्ट डिसीजन का मतलब हमको कॉन्सेप्ट देना है, हमको कुछ ना कुछ उसको लेबल करना है। यहाँ पे हम दो अप्रोच यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन के लिए। किसी भी डेटा को कॉन्सेप्ट कैसे देंगे, क्या उसको लेबल करेंगे, इसमें हम यूज़ करते हैं डेटा क्यूब अप्रोच, ठीक है, OLAP, और एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन अप्रोच। ठीक है, ये दो मेथड हैं या दो अप्रोच हैं जिसको इस्तेमाल करके हम कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, वो जो डेटा है उसका सेंट्रल डेफिनेशन क्या कर देंगे, कि वो ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, वो मेडिकल स्टूडेंट हैं, ओके, वो साइंस स्टूडेंट हैं, वो आर्ट्स स्टूडेंट हैं। तो कुछ एक लेवल करना जिसके अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उसी को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन, जिससे डेटा का ओरिजिनल फॉर्म पता चलता है। दूसरा है डेटा क्यूब अप्रोच। डेटा क्यूब अप्रोच जो है क्या कहता है कि ये सबसे पहली चीज़ तो ये ऑफलाइन है। मतलब क्या है, OLAP अप्रोच भी इसको कहते हैं, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग अप्रोच भी कहते हैं। तो इसमें जो डेटा समराइजेशन, या यू कैन से दैट कि डेटा जो आपका डेटा जनरलाइजेशन है, समराइजेशन, डेटा जनरलाइजेशन एक ही चीज़ है। तो डेटा जनरलाइजेशन जो हम कर रहे हैं, वो डेटा जनरलाइजेशन ऑफलाइन होगा। मीन्स ऑलरेडी ऑफलाइन डेटा जनरलाइजेशन वो कर लेंगे, ठीक है, उसको कहीं स्टोर कर लेंगे और उसके बाद हम क्वेरी प्रोसेस करेंगे तो वो हमको जनरलाइज रिजल्ट देगा। ठीक है, तो अब व्हाट इज़ डेटा क्यूब अप्रोच? इट इज़ परफॉर्मिंग ऑफलाइन कंप्यूटेशन एंड स्टोरिंग रिजल्ट्स इन अ डेटा क्यूब्स। मतलब इस अप्रोच में क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो डेटा जनरलाइजेशन है उसको हम डेटा जनरलाइजेशन को जो है ऑलरेडी पहले ही कर लेते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं डेटाबेस में, ताकि जब क्वेरी हो तो हम उसको परफॉर्म कर सकें। स्ट्रेंथ क्या है इसकी, क्या कर सकते हैं इसमें? जैसे कंप्यूटेशन का क्या कर सकते हैं जो जनरलाइजेशन के लिए, जैसे काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल काउंट, सम, एवरेज, मैक्स मीन, मतलब दीज आर समराइजेशन ना। क्या है सम क्या है? समराइजेशन है। सम इज समराइजेशन ऑफ समिंग लॉट्स ऑफ नंबर इनटू वन इज समराइजेशन। ठीक है, समराइजेशन और सम। तो इस तरह के जो भी मतलब जनरलाइजेशन कहते हैं या कॉन्सेप्ट जनरेशन करते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करते हैं, उसमें डेटा क्यूब अप्रोच करते हैं। यही अप्रोच जब हम ऑनलाइन करते हैं, मीन्स कि हम ऐसे ही क्वेरी लिखा और डेटा का जो समराइजेशन हुआ वो ऑफलाइन हो गया। डेटा का समराइजेशन क्या हुआ, या जो डेटा का जनरलाइजेशन हुआ वो ऑफलाइन अगर हो गया, तो ऑफलाइन अगर डेटा हुआ ऑनलाइन हुआ, तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट ओरिएंटेड अप्रोच। ऑफलाइन हुआ तो क्या हुआ? डेटा क्यूब अप्रोच। और एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडेक्शन अप्रोच कब हुआ? जब कि वो ऑनलाइन है, मीन्स पहले से कोई कैलकुलेशन नहीं हुई है, पहले से कोई जनरलाइजेशन नहीं हुआ है। हम क्या करते हैं कि जब हम ऑनलाइन क्वेरी लिखते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लिखते हैं, SQL क्वेरी लिखते हैं, तो उस समय ये ऑनलाइन ही उस डेटा को समराइज करता है या जनरलाइज करके हमें देता है, कॉन्सेप्ट जनरेट करता है। अभी हम एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, हम जो है जनरलाइजेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत छोटा सा। आगे हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी दो एंटिटी हम देख रहे हैं। क्या है? एक स्टूडेंट एंटिटी है जिसका एट्रीब्यूट है नेम, एड्रेस और ग्रेड। नेम, एड्रेस एंड ग्रेड, इनका एक स्टूडेंट का एट्रीब्यूट दिया हुआ है। इसी तरह से एक टीचर का एंटिटी है, एक टीचर एंटिटी है जिसको हम कह रहे हैं नेम, एड्रेस एंड सैलरी। देख रहे हैं दोनों एंटिटी में नेम एंड एड्रेस कॉमन है फॉर द स्टूडेंट एंड फॉर टीचर आल्सो, बट दीज टू एंटिटीज आर जो इनके डिफरेंट अलग अलग एट्रीब्यूट हैं वो है आपका स्टूडेंट में है ग्रेड,
और टीचर में है सैलरी। मतलब ये एट्रीब्यूट इन दोनों के बीच का कॉमन नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। अब इस पर जब जनरलाइजेशन अप्रोच होता है, देखिए ये जनरलाइजेशन अप्रोच हुआ। अब टीचर भी पर्सन है और स्टूडेंट भी पर्सन है, तो हमने इसको जब जनरलाइज किया इस पर्टिकुलर डेटा को, एंटिटी को, तो अब टीचर और स्टूडेंट नहीं है, अब क्या है, पर्सन है। पर्सन का क्या होगा, एड्रेस होगा, और पर्सन का क्या होगा, नेम होगा। ठीक है, पर्सन का एड्रेस होगा, पर्सन का नेम होगा। अब ये दोनों कॉमन है इस पर्सन के लिए, लेकिन अलग अलग है। पर्सन कैन बी स्टूडेंट और पर्सन कैन बी टीचर। तो पर्सन कब स्टूडेंट होगा, जब उसके पास एट्रीब्यूट क्या होगा, ग्रेड। और पर्सन टीचर कब होगा, जब उसके पास एट्रीब्यूट होगा सैलरी। उसके पास सैलरी जो होगा उसका एट्रीब्यूट होगा तो वो टीचर होगा। तो ये जो इस तरह के या डायग्राम में, इस तरह के एट्रीब्यूट्स में हम जो वीकली एट्रीब्यूट्स हैं जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है, वीक एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है। इसका भी अभी हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, रिलेवेंस एनालिसिस जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि हाँ। फिर हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनके थ्रू हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखो इसी को देखो, क्लासीफाई क्या है, कॉन्सेप्ट लेवल दे सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, अब स्टूडेंट का नेम है, एड्रेस है, यहाँ भी टीचर का नेम है, पर्सन है। तो कैसे, किस पर्टिकुलर चीज़ से आप क्लासीफाई करेंगे कि वो टीचर है या स्टूडेंट है। तो दे आर डिस्टिंग्विश, कैसे आपस अलग हो रहे हैं कि इसके पास एट्रीब्यूट ग्रेड है और इसके पास एट्रीब्यूट सैलरी है। तो इस तरह से हम जब नई एंटिटी बनाते हैं, नया एट्रीब्यूट डाल देते हैं कैलकुलेट करके या डिस्टिंग्विश करके या समराइज करके, वही सारा प्रोसेस जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेटा जनरलाइजेशन। अब इसकी ज़रूरत क्या है, जब तक हमको समझ में नहीं आएगा, देखिए जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पास जो क्राइटेरिया क्या ले, किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हम क्राइटेरिया ले आए, किस एट्रीब्यूट को हम क्राइटेरिया लेकर डेटा को हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसकी मॉडल तैयार कर सकते हैं और उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे कि नया एंट्री जब भी आए तो वो अपने आप ही उस पर्टिकुलर क्लास में, जिस पर्टिकुलर क्लास को वो डेटा बिलोंग करता है, उसमें वो चला जाए। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। डेटा क्यूब अप्रोच के बाद भी हमारे पास और भी जो है ऑप्शंस हैं, जिसमें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछिएगा। मैं इसका डिटेल नोट्स आपको भेज रहा हूँ, ये थियोरेटिकल पार्ट है तो इसका डिटेल नोट्स भेज दूँगा, उसमें वो आप पढ़िए। अगर जो भी समझ में आता है ठीक है, और जो क्वेश्चंस होते हैं आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।